علامہ غلام جیلانی صاحب ہیں، حضرت مولانا ذیشان رضا ہیں، میں چند کا نام جانتا ہوں۔ میرے دائیں بازو میں میرا بھائی، میرا برادر اکبر، بڑا متحرک المزاج شخصیت حضرت علامہ قاری اسنان صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ میں چند کو جانتا ہوں، لیکن میں جن کا نام نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں جس امام سے میرا رشتہ اسی امام سے ان کا رشتہ، جس مسلک سے میرا رشتہ اسی مسلک سے ان کا رشتہ، جو مشن ہمارا وہی مشن ان کا، جو نظریہ ہمارا وہی نظریہ ان کا، جو نعرہ ہمارا وہی نعرہ ان کا۔ اور یہ نعرہ کیا ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے دلی کا ایک مولوی جو ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہے، ٹوپی بہت اونچی لگاتا ہے، داڑھی بہت لمبی لگتا ہے اور خود کو سنی کہتا ہے اور وہ دلی سے کہتا ہے اب آؤ حکومت کی آواز میں آواز ملاؤ تاکہ ہم حکومت سے اپنا فنڈامنٹل رائٹ لے سکیں۔ ہم کہتے ہیں ملا جی تمہاری اوقات نہیں کہ تم فنڈامنٹل رائٹ لو، تم تو پٹھو ہو پٹھو، دلال ہو دلال، غلام ہو غلام۔ اگر حکومت سے بات کرنی ہو، اپنا فنڈامنٹل رائٹ لینا ہو، اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہو تو تم جیسے بزدل نہیں، ہم اہل سنت کو علماء کرتے ہیں اور ہم نے ہند میں نہیں، ہم نے تو عرب کی زمین پہ حقانیت کا جھنڈا گاڑ کے بتا دیا۔ اگر اڑیسہ کا مجاہد ملت حبیب الرحمان ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا دلی میں بھی بجتا ہے، سعودیہ میں ریاض میں بھی بجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جمال الاولیاء کو بولیں حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! صرف لفاظی سے کام نہیں چلتا، جملوں سے کام نہیں چلتا، کلیجے بھی پڑھانے پڑتے ہیں، حساسیت پیدا کرنی پڑتی ہے، کلیجے بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، وہ کل کا مسئلہ ہو، اب کا مسئلہ ہو یا آنے والا مسئلہ ہو، دنیا نے دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ عظمت اسلام پہ جب جب انگلی اٹھی، کل مفتی اعظم کھڑے ہوئے تھے، آج غلام مفتی اعظم کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے۔ کیا کہنے ہیں! واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ زندہ باد۔ دنیا والوں تم اس مغالطے میں نہ رہنا، اس کنفیوژن میں نہ رہنا کہ جس اسلام پر اتنی بک بک ہو رہی ہے یہ اسلام لاوارث ہے۔ قطعی کنفیوز نہ ہونا، because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim۔ اس دین کی یہی تو خاصیت رہی ہے کہ 49 سال تک قرآن کو مٹانے کی تحریک چلانے والا ساؤتھ افریقہ کا کرسچین پادری جب قرآن کو مٹانے کی تحریک میں 49 سال وقت گزارا اور 49 سال کے بعد جب اس نے قرآن کو پڑھا تو وہ کعبے کی خلاف 2018 میں پکڑ کے کہہ رہا تھا اسلام مٹانا تو مشکل، اگر 50 سال کا دشمن اسلام قرآن کو دل سے پڑھ لے تو اس کا سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں! سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ 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 واہ۔ اب حضرت میں ایک ہمارے لطیف اہل سنت کی ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت اب یہ مائک بند کر دیجئے، صرف میں بولوں، اب ہمارا سنی بولے گا، اب ہمارا سنی بولے گا۔ اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس وقت اسلام اور دنیا کا تمام نظریہ آمنے سامنے ہو۔ سنبل کی زمین ہو، سگے بارگاہ احمد رضا ہو، سامنے ہمارا سنی ہو، ایک طرف پوری نظریہ کے لوگ ہو، ایک طرف ہمارا اسلام ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی روشنی کے سامنے پوری کفر طاقتیں کتنی دیر تک کھڑا رہتی ہیں۔ بہت اجازت ہو تو
आगे बढ़ूं, इजाजत दो तो आगे बढ़ूं। मेरी कमजोरी है कि मैं खामोश लोगों में बात नहीं करता। हम बात करते हैं तो बंद में भी बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो खुल के भी बात करते हैं, क्योंकि जो बात करते हैं वो बंद में बात करते हैं, फिर वो खुल के बात नहीं करते। हम तो वो हैं जो बंद वालों में भी जा करके हम उनकी बंदी तोड़ देते हैं, और जब हम मैदान में हो तो वहां बंदी तोड़ते हैं, यहाँ गुंडागर्दी तोड़ते हैं। खौफ में रख रजा जना, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक सवाल बहुत संजीदगी के साथ पूरे अपने बच्चों की तवज्जो चाहूं। हमारे यहाँ जितने यूथ बच्चे हैं, जितने नौजवान बच्चे हैं, जितने यूथ कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ जो ठीक 3 तारीख को मैंने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में किया है। खुली परमिशन तो न मिली चूंकि माहौल इलेक्शन का था, लेकिन एक मैरिज हॉल में तकरीबन जिसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी थी, वहां परमिशन मिली। हॉल के अंदर 70% वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग थे, सियासतदान थे, लीडरान थे, वकला थे, प्रोफेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, 70% थे। बात मैंने करी, मैं एक जुमला वहां का यहाँ रखता हूँ, देखता हूँ आप कितना कैच करते हैं। तवज्जो है? इस जुमले पे अगर आपने तवज्जो दी और इसको अगर आपने कैच कर लिया तो मैं समझ लूंगा मुझे कैसी बात आपसे करनी है, वरना फिर ये गुफ्तगू कहीं और होगी। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। वो जो 2-4 आवाजें कहीं कहीं से बुलंद हो रही हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मुझ पे रहम कीजिए या खुद पे रहम कीजिए। ये हमारे जो हजरात बैठे हैं थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं, इसलिए कि हमारी माँ बहनों को थोड़ी जगह तक नजर आ रही है। थोड़ा सा थोड़ा आ जाइए, सुभान अल्लाह, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से थोड़े, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ये जिनके कदम मेंबर शरीफ के करीब पड़ रहे हैं, मैं मुसाफिर हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मौत से पहले इस कदम को मदीना शरीफ की तरफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब करीब थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ले। अब करीब करीब से मत आ जाओ, करीब करीब से मत जाओ। अब इत्मीनान से बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए इत्मीनान से, इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। अब बिल्कुल संजीदा हो जाओ। ओ मेरे भाई, ओ बैठ जाओ। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे। अब इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। देखो मजमा आपका है, महफिल आपकी है, ज़हन बनाए, माहौल बना। अब तवज्जो से गुफ्तगू सुनो। जो जहां बैठा है, जिस हाल में बैठा है, जिस तरह बैठा, इत्मीनान से गुफ्तगू सुनो। सुनो एक मरतबा सभी लोग हाथ उठा के कहे तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, दिल ना करे तो ना लगाओ। लेकिन हमारा अकीदा ये है, जितना सुन्नी होगा उसका दिल करेगा, क्यों ना करेगा, क्योंकि वो हुजूर के नारे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेशक, सभी लोग हाथ उठा के कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अब मैं मेंबर शरीफ की उलमा की खुसूसी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो चाहूं। मेरी एक बात सुनो जो मैंने दिल्ली में कहा, और खुदा की कसम जब मैंने ये बात कही ना, आप यकीन न करो, पूरा मजमा स्टैंड अप हो गया था, पूरा मजमा खड़ा हो गया था। आप जरा से इसकी बारीकी में जाएं। एक बात बताओ मुझे, इन दिनों आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आप क्या देख रहे हो? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ हमारी बातें चल रही हैं। और बात क्या चल रही है? मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान चाय की दुकान करता है, मुसलमान पान डब्बे पर है, मुसलमान खत्म है, मुसलमान स्टेटस लेस है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान बर्बाद हो चुका है, मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी का जो नौजवान है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, लुच्चा हो चुका है, लफंगा हो चुका है। मुझे ईमानदारी से बताओ ये बातें हो रही है कि नहीं हो रही है? बेशक। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये सोच रहा है यार ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बात सही तो नहीं है, ये बात हकीकत तो नहीं है, क्या वाकई हम बैक फुट पे चले गए, क्या वाकई हम इतने कमजोर हो गए? मैंने जब इस पे गौर की तो मैंने कहा ना 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 ना, ये तो हमारे बच्चों के हौसले को पस्त करने का एक नया हथियार अपनाया गया है। ये तो हमारे नौजवानों
मुसलमानों की सोच को बैक ले जाने का, डार्क में ले जाने का ये तो नया हथियार अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर कैसे लोगों के हालात को, जज्बात को कमजोर किए जाते हैं। किसी को पता चल जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारे पीएम है, हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश के अच्छे पीएम है, हम प्यार करते हैं, वो मुरादाबाद आए हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे। अब डाइवर्ट अगर करना हो वहां से जाने के लिए तो ये कह दिया जाए नहीं, संभल चलो, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, वहां इस्राइल के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसों का नाम जानवर लेते हैं, वो आ रहे हैं। अब जो ट्रंप वाले होंगे वो कहेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल, योग डिवाइड एंड रूल, गो पे, अब उधर चलो, अब उधर चलो, डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर गए, कुछ इधर चले गए। हमने ये सोचा या सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोई भी चैनल खोलो, कोई भी न्यूज शो खोलो, कोई भी, हम न्यूज खोलते हैं ये देखने के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, हमें यही सुनाई देता है मुसलमान बैकवर्ड है, कमजोर है, पुअर है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहें, दानिशवराने कौम मिल्लत की तवज्जो चाहेंगे, ये हमारे जो कय्यूम बेटे खड़े हैं हम इनकी तवज्जो चाहेंगे। हमने कहा यार वाकई अगर मुसलमान इतना ही कमजोर है, इतना ही बैकवर्ड है, इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, हम सिर्फ 14% है, अगर वाकई हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार है, इतने खत्म है, स्टेटस लेस है, किसी काम के लायक हम नहीं है, फिर बात क्या है? हमारा नाम लिए बगैर किसी का लंच नहीं होता, किसी का डिनर नहीं होता, किसी का खाना नहीं होता, किसी का नाश्ता नहीं होता। अगर हमारा कोई नाम न ले तो उसे दिल्ली में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे लखनऊ में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे पटना में चैन नहीं है, हमारा नाम कोई न ले उसे बंबई में चैन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो पुअर होता है, जो कमजोर होता है, जो स्टेटस लेस होता है, जो बेकार होता है, उसे तो किनारे कर दिया जाता है, उसे तो साइड कर दिया जाता है, उसकी कौन बात करे, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं हम बेकार हैं, हम पुअर हैं, हम स्टेटस लेस हैं, हम खत्म हैं, जीरो मटा सन्नाटा है, हम बिल्कुल खत्म हैं, काइबन सीहा है, और पलट के दूसरी तरफ देख रहे हैं आप है, दिन में हमारा चर्चा, शाम में हमारा चर्चा, सुबह में हमारा चर्चा। जब हमने इस पर तवज्जो की तो पता चला ना हकीकत तो कुछ और है। अल्लामा इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तो जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हुज़ूर, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार मद्दी, जमानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला छत्रबेती। वाह वाह वाह, सुना। डॉक्टर इकबाल कहता है ना नौजवान, हौसला कमजोर न करना, पस्त न करना, खामोश न होना, खुद को इतना कमजोर न समझना, दुनिया तुझे जितना बता रही है। तेरी तो शान ये है, तेरा तो मकाम ये है, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहते हैं? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ओए संभल वालों आओ जरा, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मुस्लिम, खराब मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, एजुकेशनलेस मुस्लिम, जीरो बटा सन्नाटा मुस्लिम, चाय की दुकान मुस्लिम, पान की दुकान मुस्लिम, पंचर की दुकान मुस्लिम, बावजूद उसके रसिया में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, अमेरिका में हमारा चर्चा। इतने गए हम, इसराइल में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, फिजी में हमारा चर्चा। दुनिया को पता है ये किसी और की नहीं, ये मोहम्मद के गुलाम है। दुनिया को मालूम है ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले के गुलाम है। इन्हें किसी तरीके से पैर फूट होने का एहसास दिलाओ ताकि इनका एहसास मर जाए, वरना ये कौम वो है, अगर कहीं इनका एहसास बेदार हो गया, अगर इनका जज्बा बेदार हो गया और इन शेरों ने अगर अपनी हकीकत पहचान ली तो फिर हर
पुअर हो, स्टेटस लेस हो, बैकफुट हो, दुनिया नहीं जानती। हमारे हाथ में जब कलम दिया गया तो हमने इस भारत को विश्व गुरु, भारत को शक्तिशाली बनाने में इतना बड़ा योगदान किया कि अमेरिका को अपनी ताकत पे नाज था। एक मुसलमान बच्चे, अब ये दीजिए, अब्दुल कलाम ने परमाणु बना के बता दिया, भारत का में कलम अगर मुसलमान को दो तो भारत गरीब नहीं, दुनिया का ताकतवर मुल्क बना दिया जाता है। अगर हमारे हाथों में टैंक दो तो दुनिया को पता है ये हुजूर का गुलाम है, अगर इसे टैंक दे दो तो ये कारगिल की सरहद पर भारत को कामयाबी दिलाने वाला वीर अब्दुल हमीद बन जाता है। ये हमारी तारीख है। वो अलग बात है कि हम अपनी कामयाबी के चर्चे करते नहीं हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ये मानना है हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हमने कभी बताया नहीं है। अगर तवज्जो हो तो चार बातें और कर लूं आपसे। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज क्या देख रहे हो आप? जहां देखो वही कुरान पे हमले, जहां देखो वही कुरान पे डिबेट, जहां देखो वही कुरान पे बातें। अच्छा कमाल तो है, कमाल तो है, एक शख्स जो अपनी कम्युनिटी का चेयरमैन था, एक शख्स जो अपने